Hello everyone, Namaskar, Salam, Sat Shri Akal. Wish you all a warm welcome on this wonderful session of Physics Expert. I am here, your very own KP Sir, Faculty of Physics. I have a dream. I have a vision, and I think it is very much important to share with you. You know, because of the proper guidance, lack of infrastructure in education system, many students deprived from, many students unable to crack the competitive examinations like national eligibility cum entrance test NEET, joint entrance examination JEE, and so many other civil services examinations like that. I am trying to fill up that vacant space by creating a new era in this education system. Anyway, I am welcoming you again in this very important session all about NEET. Here we will discuss each and every point of NEET, how to crack the NEET, what is the future aspect of NEET. Today I will only concentrate on this topic, all about NEET. But before that, it is very much important to know who will go through this session, for whom this session, who will be benefited with this session, right? So, answer is that if you are a student of class 11 or 12th or already passed class 12th examination, appeared 12th examination in science stream, then obviously go through this video. If you have a vision, to serve the society, to work for the nation, to join the prestigious job, one of the most respected job, and obviously job of a doctor, then go through this session. Stay with me till the end of the session. If you are a student of class 9, if you are a student of class 10th, and if you have that vision, yes, I will work for the nation, I will work for the society, I will change the health system, improve this health system by providing better facility, by providing proper health infrastructure, by providing my service to the nation, then obviously go through the end of the session. Another request is that
You know, sharing knowledge is the most charity work. And so, please share this video, share this information to your near one, to your friends, to your brother, to your sister, to your well-wishers. Maybe because of your one share, he may be influenced, she may be influenced, crack the NEET examination, maybe may have a vision also to join that prestigious job, to serve for this society. Yes. You know, कहा जाता है कि विद्या बंटने से बढ़ता है. So, मुझे लगता है कि आप अपना कर्तव्य करेंगे, नॉलेज को शेयर करेंगे, ये वीडियो को शेयर करेंगे. क्या पता आपका एक प्यारा सा शेयर से दूसरे का लाइफ चेंज हो जाए. लाइफ चेंजिंग एक मैसेज हो जाए आपका. सो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, प्यारा सा स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, what is NEET? Everybody have a question. What is the criteria of NEET? How to crack the NEET? So many curiosities are there about it. So first of all, what is NEET? NEET, National Eligibility Cram Entrance Test. National Eligibility Cram Entrance Test. Now you see, National Eligibility Cram Entrance Test. There are two types of NEET. One is NEET UG and another is NEET PG. UG stands for undergraduate. PG stands for postgraduate. You are preparing, if you are a student of class 9, 10, 11th or 12th or 12th APR, you are preparing for undergraduate course, means NEET UG. You will give NEET UG and thereafter NEET PG will come, not now. You are preparing for NEET UG. So your exam name is NEET UG, undergraduate course. Right? Understand? Now, who will conduct this NEET? So, NEET is conducted by National Testing Agency NTA, whose official website is www.nta.ac.in. So many informations regarding NEET. NTA time to time updated on its portal, on its website. Now exam level, obviously all India level, पूरे भारत में, और ये भी है भारत के बाहर से भी, एब्रॉड से भी स्टूडेंट एपीआर कर सकते. इसके लिए कंडीशन क्या है वो भी मैं धीरे धीरे शेयर करते जाऊंगा, धीमे धीमे शेयर करते जाऊंगा. चलो, सो एग्जाम टाइप undergraduate, already I told you it is undergraduate course. Accepted. If you qualify NEET, medical and dental colleges in India, जितना भी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस है आपको एक्सेप्ट किया जाएगा.
एलिजिबल हो गया। तो यहां पर एक चीज बोलना है, इफ यू क्रैक नीट इट डज नॉट प्रॉमिस दैट, यह कतई प्रॉमिस नहीं होता कि आप एक अच्छा सा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के लिए एलिजिबल हो, एमबीबीएस में एडमिशन हो जाएगी। नहीं, नीट क्रैक करना मीन्स यू आर एलिजिबल, बट इट डज नॉट प्रॉमिस दैट यू विल गेट द चांस फॉर एडमिशन in a medical college, government medical college, or a topmost one, because for which you have to go through so many processes, like counseling processes is there. So I'll discuss one by one. So क्रैक करने से शायद आपको आयुष कोर्स में भी मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर रैंक। सो क्वालिफाई करना डज नॉट इंडिकेट दैट आपको उसी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के लिए मिल जाएंगे, कतई ये प्रॉमिस नहीं करते। अंडरस्टैंड? नाउ सी मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफलाइन है। फॉर इन लास्ट फ्यू ईयर्स, कुछ साल पहले कोई साल कि ऑनलाइन भी एग्जाम हुआ था। नाउ नीट इज टोटली ऑफलाइन कोर्स, ऑफलाइन एग्जाम, मोड ऑफ एग्जाम इज ऑफलाइन। बहुत सारा जगह से ऐसा भी ये आ रहा है कि ऑनलाइन करने के लिए। तो टिल नाउ एनटीए नीट को ऑनलाइन करने के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया। फ्यूचर में हो सकता है कि ये भी ऑनलाइन हो जाए। नाउ टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा। जनरली 4 आंसर रहता है और आपको क्या करना है, बेस्ट आंसर चूज करना है। करेक्ट आंसर नहीं, बेस्ट आंसर को आप चूज करना है आपको। देन पीरियोडिसिटी, यस, 1 इन ए ईयर, साल में एक ही बार होता है। अभी कोविड के वजह से नीट बहुत पीछे जा रहे। सो होप ये राइट टाइम में होगा फ्यूचर में। ये भी आता है कि हाँ 2 बार साल में हो जाए, लेकिन ये भी एनटी अभी तक कुछ अप्रूव नहीं किया, मिनिस्ट्री अभी तक कुछ अप्रूव नहीं किया। अभी तक एक ही बार नीट एग्जाम साल में हो रहा है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे आप बोर्ड एग्जाम देते 3 आवर्स, वो 3 आवर्स ही है। स्कोर ऑफ रेंज 720, मैक्सिमम 720, मतलब 720 मार्क्स के ही क्वेश्चंस रहते। उसका सिलेबस में हम देखूंगा धीरे स्लोली। करेक्ट आंसर के लिए 4 और इनकरेक्ट आंसर के लिए -1। ये इनकरेक्ट आंसर, निगेटिव मार्किंग मतलब है -1 है। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी स्टूडेंट से नेगेटिव मार्किंग से बचना, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग के लिए नीट का रैंकिंग बहुत पीछे चले जाते हैं बहुत स्टूडेंट का। बिकॉज यू नो, आप सपोज एक करेक्ट आंसर किया, मिला 4, उनमें से और सेकंड जो 2 ही आंसर किया, एक करेक्ट हुआ और एक रॉन्ग हो गया। जो रॉन्ग हुआ उसका भी 4 मार्क था, लेकिन वो मिला नहीं। और फिर जो मिला 4 मार्क्स, उससे भी एक कट गया, आपका 3 बचा। सो इसीलिए निगेटिव मार्किंग डेंजरस होता है। कभी भी तुक्का नहीं मारना, जिसको हम आम लैंग्वेज में कहते हैं तुक्का मारना, वो नहीं करना। तुक्का फ्री इंडिया बनना पड़ेगा। तुक्का से नीट नहीं होगा। अंडरस्टैंड? पहले
अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग मेडिकल एग्जामिनेशन होता था। जैसे कि आसाम के लिए एक टेस्ट होता था, पंजाब के लिए एक टेस्ट होता था, यूपी के लिए अलग सा टेस्ट होता है मेडिकल के लिए। ये और ऑल इंडिया लेवल में भी होता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट उसको कहा जाता था। द नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 which came into force on 24 September 2020 under section this provides the holding common and uniform national eligibility come and entrance test means 2020 से नीट एक नेशनल लेवल एग्जाम हो गया। मतलब कोई भी डेंटल कॉलेज, कोई भी मेडिकल कॉलेज, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे ये गवर्नमेंट हो, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, सभी जगह पे ओनली वन टेस्ट result is acceptable and it is your need। और एक बात है, एम्स एंड जिम्पार, ये दोनों ने कहा कि हम तो ऑटोनोमस बॉडी है, हम क्यों ये नीट के साथ जाए। लेकिन बाद में ये दोनों भी बाउंड हुआ, आना पड़ा नीट के साथ। मतलब अगर एम्स में भी एडमिशन लेना है तो भी आप नीट के थ्रू जा सकते हैं, जिम्पार में एडमिशन लेना है तो भी आप नीट के थ्रू जाना है। मतलब डॉक्टर प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन में व्हाट एवर इट इज, डेंटल और एमबीबीएस मेडिकल, कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटी में, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जहां पर भी हो, फॉर एडमिशन नीट इज ओनली द एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्लियर? Now you see, मैं देखा कि कभी कभी कोई बहुत सारा फेक न्यूज़ेस आते हैं रिगार्डिंग नीट। जैसे कि लास्ट ईयर सुनने में मिला कि नीट का सिलेबस कम गया, डिडक्ट हो गया, बहुत सारा पार्ट छूट दिया। बहुत सारा सोशल मीडिया में ये शेयर होते जाते हैं। कभी भी ये सारे फेक न्यूज़ को, बहुत सारा फेक न्यूज़ेस आते, उसको ट्रस्ट, उसको बिलीव नहीं करना। सारे सही इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन जहां से मिलेगा वो है nta.neet.nic.in। आपको अगर सही इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी बदलाव आते समय समय से, टाइम टू टाइम वो तो चेंजेस होता ही है, बहुत सारा अमेंडमेंट भी लाया जाता है। अभी जैसे आप देख रहे एजुकेशन सिस्टम में बिकॉज ऑफ कोविड बहुत सारे चेंजेस लाया गया विथ प्रॉपर नोटिफिकेशन। फेसबुक पोस्ट से, कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट से एक्चुअली वो वैलिड नहीं माना जाता। ऑफिशियल नोटिफिकेशन, गैजेट नोटिफिकेशन चाहिए, और वो कहां से होता है? आपका यहां पर nta.neet.nic.in में आपको कोई भी बदलाव लाया जाता है, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी अपडेट, whatever, if there is any update will be available in nta.neet.nic.in। so you have to regularly go through this website for regular updates about your NEET examination, right? Now you know, out of the total seat, 15% under all India level seats under central and 85% under state। ये भी मैं समझाऊंगा धीरे धीरे। So the official websites for counseling of 15% of all India seats, central institutions, university and deemed universities related to information is as under. For MBBS, BDS courses, you see, you have to go through the website of this Ministry of Health and Family Welfare, Medical Counseling Committee, सभी का
वेबसाइट से, रेस्पेक्टिव वेबसाइट से आपका 15% रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन वहां पर मिलेगा। BMS, BAMS, BSMS, BUMS, BHMS, ये सारे कोर्सेस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष होता है। तो आपको आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में जाना है या आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसिलिंग कमिटी के थ्रू, और इसी का ऑफिशियल वेबसाइट में आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेगा। बाकी है 85%। देन फॉर 85% you have to go through the state या respective states, state institution, जैसे कि बहुत सारा स्टेट का जितना भी इंस्टीट्यूशन है, तो वो सब का ऑफिशियल वेबसाइट्स में आप रेगुलर चेक करते सकते, अवेलेबिलिटी, सारे इंफॉर्मेशन सब कुछ वो स्टेट वेबसाइट्स, इंस्टीट्यूशंस वेबसाइट में अवेलेबल होगा। गो थ्रू इट फॉर 85% एंड फॉर 15% यू विल गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम हियर ओनली, राइट। देखिए, ये तो मैं कहूंगा कि एज यू आर गोइंग टू क्रैक द नीट एग्जामिनेशन, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू नो ईच एंड एवरी पॉइंट अबाउट नीट। कहा जाता है ना कि जिस समंदर में तैरना है, स्विमिंग करना है, उसी का पहले डेप्थ जानना चाहिए, राइट ना। तो मुझे नीट में अगर जाना है, नीट का डेप्थ पहले जान लेते कि ये नीट का डेप्थ है, देन ओनली यू आर एबल टू क्रैक दैट वन। तो एक एक पॉइंट बारीकियों से समझना पड़ेगा, ठीक। Now, syllabus. One of the most important part of NEET examination is your syllabus. So, course NEET UG ये 2020-21 का, यहाँ पर भी 2021 में कुछ चेंजेस लाया गया। तो ये चेंजेस, लिटिल बिट चेंजेस, ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएंगे, और मुझे भी टाइम मिला तो मैं आज एक्सप्लेन कर दूंगा जो इस साल के लिए कुछ चेंजेस लाया गया, वो चेंज के बारे में। दिस इज द अर्लियर नोटिफिकेशन ऑफ 21, जहां पर देखो मोड ऑफ एग्जामिनेशन पेन पेपर, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। फिजिक्स सेक्शन है 40, सेक्शन बी 10, केमिस्ट्री सेक्शन बी 40, 10, बॉटनी 40, 10, जूलॉजी 40, 10। नाउ सेक्शन ए का सारे क्वेश्चंस मैंडेटरी है। सेक्शन बी का एक एक सब्जेक्ट से 5, जैसे यहां से 5 देना है, 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 मतलब कुल मिलाकर यहां से 45, यहां से 45 हो गया, यहां से 45 हो गया, यहां से 45 हो गया। From section A, all the questions are mandatory. From section B of each subject, 5 questions are mandatory. Here already it is written, each subject will have 2 sections. Section A will comprise of 40 questions and section B will comprise of 10 questions, in which candidates have to attempt only 5 questions out of 10. That is out of 10. 5 questions देना, यहाँ से 5, यहाँ से 10, 45 in each subject. That is from physics 45, from chemistry 45, from zoology 45, from botany 45. मतलब बायोलॉजी से आपको 90 मिल रहा है। सो बायोलॉजी में स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा नीट के लिए, बिकॉज इनमें से 50% मार्क्स आ रहे, 90 क्वेश्चंस आ रहे। फिजिक्स केमिस्ट्री भी स्ट्रांग होना पड़ेगा डेफिनेटली, बिकॉज मैं एक बार बोला कि नीट क्रैक करने से ये कतई ये नहीं होता कि आपको मिल जाएंगे। और मैं तो एक चीज बोलता हूं कि हाँ, डॉक्टर बनना नहीं, वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनो। बिकॉज अभी का एजुकेशन, अभी का हेल्थ सिस्टम को अगर इंप्रूव करना है, बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर चाहिए,
तब हमारा जो रीजन है, हमारा कंट्री, हमारा स्टेट, सभी में हेल्थ सिस्टम में चेंजेस आएगा ओनली व्हेन वर्ल्ड फेमस डॉक्टर जब हमारे पास रहेंगे। तो इसके लिए नीट का स्कोर बहुत अच्छा होना पड़ेगा, राइट। सो ये तो ही सिलेबस, फिजिक्स से 45, एक एक का 4 मार्क्स है, तो आपका 180 आ गया फिजिक्स से, केमिस्ट्री से 180, बॉटनी से 180, जूलॉजी से 180, टोटल आया आपका 720 मार्क्स, राइट। नाउ ऑलरेडी आई टोल्ड यू करेक्ट आंसर के लिए +4, नेगेटिव आंसर के, इनकरेक्ट आंसर के लिए -1, और अगर आप आंसर नहीं करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 0। करेक्ट आंसर 4 मार्क्स, incorrect answer -1, and if you would not attempt it then 0. Correct? Understand? This is the criteria or pattern of syllabus, right? Language of examination, नीट कौन कौन सा लैंग्वेज से होता है? So though hum maximum students opted English, but there is provision of Hindi, Assamese, Bengali, Gujarati, Kannada, Urdu, Telugu, Tamil, Odia and Marathi. You may get the questions with this language also along with English. So generally all the students opted English language for NEET, but these languages are also available, right? Now try to understand the eligibility criteria for NEET. Here eligibility criteria is as per 21. So for NEET UG, first thing is that age limit, minimum 17 years, maximum 25 years. 25 years के बाद आप एग्जाम नहीं दे सकते if you are from general category. For SC, ST and other, I am giving the next slide. There is here is also there. The upper age limit for NEET is 25 as on the date of examination, with relaxation of 5 years for the candidates belonging to SC, ST, OBC and CL category, and PWD candidates means आपको अगर नीट देना तो मिनिमम आपको 17 होना चाहिए, मैक्सिमम 25 होना चाहिए, और अगर आप SC, ST, OBC, NCL, ESR और PWD कैटेगरी में आते हैं तो आपको 25 से भी और 5 इयर्स मतलब 30 इयर्स तक आप नीट एग्जाम दे सकते हैं। 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल रहा है आपको, राइट? अंडरस्टैंड ना? चलिए ये तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मुझे लगता है ये आप देख के समझ जाएंगे। सेम अभी ये तो मैं मेडिकल MBBS कोर्स के लिए बोला, BDS के लिए अभी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है BAMS, BSMS, BUMS, BHMS जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर में आते हैं। तो इसी के लिए क्या है, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड इंटरमीडिएट 10+2 होना चाहिए और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंसर्न स्टेट एंड गवर्नमेंट एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट, और उनमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश इंडिविजुअली एक एक सब्जेक्ट में 50 मार्क्स 50% मिलना चाहिए। And together physics, chemistry and biology at the aforesaid qualifying examinations in the case of the general category, and 40% marks for scheduled caste and scheduled tribe and other backward classes। यहाँ पर भी 50% for general category और SC ST के लिए फिर
10% कम होने से भी हो रहा है, 40% होने से भी मिल रहा है। In respect of the persons with the disability, candidates specified under the Rights of the Persons with the Diabetes Act 2016 49 of 2016, the minimum qualifying marks in the said qualifying examination in physics, chemistry and biology shall be 45% in case of the general category and 40% in case of the scheduled castes, scheduled tribe and other backward classes। तो अगर आप डायबिटीज़ या ऐसे कुछ प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे तो उनमें भी आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाए। इस जनरल कैटेगरी के लिए 40% 45 है और SC ST है तो 40% से भी चलेगा, राइट। नाउ ये इतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नाउ एलिजिबिलिटी फॉर 15% ऑफ ऑल इंडिया कोटा सीट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होता है कि 15% क्या है और 85% क्या है। तो मैं ऑलरेडी बोल चुका है कि 15% जो है वो सेंट्रल कोटा से आता है एंड 85% जो है वो स्टेट कोटा से आ रहा है। तो जो इंडियन नेशनल्स, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडियंस, NRIs जिसको हम कहते हैं ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, OCA जिसको कहते हैं, और फॉरेन नेशनल्स आर एलिजिबल फॉर 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स। अभी यहां पर एक प्रॉब्लम है, टाइम टू टाइम इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अपडेट देखते जाना। सारे यूनियन टेरिटरीज जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के लिए ये 15% अवेलेबल नहीं है। 15% अगर आप लद्दाख से बिलोंग करते, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते, यूनियन टेरिटरीज से बिलोंग करते तो आपको ये 15% का फायदा नहीं मिलेगा अनलेस जब तक आप एक डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट नहीं करते तो वो 15% के हकदार नहीं है। आप सिर्फ 85% के थ्रू जा सकते हैं, राइट। यहां पर क्लियरली लिखा है कि with regard to participation of UT and JK and Ladakh in all India quota, it is informed that the erstwhile state and of JK had opted to stay out of the all India quota schemes since inception, and as such the students of JK were also not allowed to participate for the admission in all India quota seats। सो यहाँ पर आप देख लेना ये नोटिफिकेशन धीरे धीरे, क्योंकि मैं वीडियो ज़्यादा लेंथ का नहीं करना चाहता हूँ। तो एडमिशन प्रोसीजर, तो एडमिशंस टू ऑल द स्टेट्स अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेजेस विल बी डन थ्रू NEET 21। द फॉलोइंग आर द सीट्स अवेलेबल अंडर द डिफरेंट कोटा। तो यहाँ पर कोटा का भी ऑल इंडिया कोटा सीट्स, स्टेट गवर्नमेंट सीट्स आ रहा है, सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी आ रहा है, स्टेट मैनेजमेंट NRI कोटा से आ रहा है, सेंट्रल पूल कोटा सीट से आ रहा है, ऑल स्टेट्स इंक्लूडिंग NRI कोटा एज वेल एज मैनेजमेंट कोटा इन प्राइवेट अनएडेड, एडेड मॉनिटरी नॉन माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजेस शैल ऑल्सो बी फिल्ड on the basis of the merit obtained in NEET examination। मतलब आप जो भी प्राइवेट, बहुत सारा यूनिवर्सिटी अपना सीट्स में सभी का बात नहीं कर रहे, बहुत सारा यूनिवर्सिटी आप बहुत सारा डोनेशन लेके, अगर मैं रफ लैंग्वेज में बोलूँ डोनेशन लेके जिसको एडमिशन देते, तो एडमिशन के लिए नीट क्वालिफाई होना जरूरी है। और नीट क्वालिफाई नहीं, उसमें भी मेरिट बेसिस ही देना इंपॉर्टेंट है एस इंस्ट्रक्टेड बाय गवर्नमेंट, राइट। सो ये ऑलरेडी बोल चुका है, सेम ही है BAMS BUMS के लिए। अभी रिजर्वेशन का बात करें, सो रिजर्वेशन इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, सिर्फ मैं यही बोलूंगा रिजर्वेशन है और रिजर्वेशन के लिए आप 15% फ्रॉम SC, स्टेट ST के लिए 7.5%, PWD के लिए 5%, OBC के लिए 27%, EWS से 10% ओनली इन नेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। ये हुई आपका रिजर्वेशन पॉलिसी जो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो वो गवर्नमेंट को भी फॉलो करना पड़ेगा, NT को भी फॉलो करना पड़ेगा और सारे काउंसिलिंग कमिटी को भी फॉलो करना पड़ेगा। यही
चलिए अभी कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर नीट 21 बाय लॉगिंग इनटू, ये देखिए यही वेबसाइट में करना है। और ज्यादा कुछ अभी एक चीज यहां पर बोलना है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आप नीट देना है। यस, आई एम डिटरमाइंड टू गिव द नीट, बट यू हैव टू मैनेज, यू हैव सम डॉक्यूमेंट्स इज रिक्वायर्ड। जैसे कि आपको आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड में सही नाम, पेरेंट्स का नाम, और कई सारा बच्चे को देखा जाता है कि पेरेंट का नाम सर्टिफिकेट में एक है, आधार में एक है, तो वो मिसमैच होने से नहीं होगा। रेसिडेंशियल एड्रेस सही होना है। आधार कार्ड के बिना भी हो सकता है। यहां पर भी ये भी लिखा कि रेशन कार्ड, बैंक अकाउंट पासबुक विथ फोटोग्राफ, पासपोर्ट नंबर और नंबर ऑफ एनी अदर फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट यू कैन अप्लाई। नेसेसरी नहीं है आधार कार्ड, लेकिन आधार होने से अच्छा है कि आपको इजीली इतना वेरिफिकेशन भी नहीं मिल रहा है। तो आप अगर 9 में है, 10 में है, 11th में है, 12th में है, तो काइंडली आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सही रखिए। नीट के लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट हो रहा है। नाउ अभी और एक बात है कि ओएमआर शीट में अभी जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है नीट का, आपका ओएमआर शीट नीट रिजल्ट जब देता है या रिजल्ट के जस्ट पहले आपका ओएमआर शीट या रिजल्ट के साथ साथ ओएमआर शीट अपलोड हो जाते हैं। ऐसा कहीं पर ये हाइड नहीं रखा जाता आपका आंसर स्क्रिप्ट। तो इसीलिए क्या है कि आप इसको चैलेंज भी कर सकते हैं। आपको अगर लगता है कि आपका आंसर सही है और नीट ने आपका, एनटीए ने आपका आंसर सही नहीं माना, अगर लगता है तो आप उसको चैलेंज भी कर सकते हैं। इसका भी प्रोविजन से मैं ये दिखा देता हूं कि प्रोविजन यहां पर लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू मेक ऑनलाइन चैलेंज अगेंस्ट द प्रोविजनल आंसर्स की ऑन पेमेंट ऑफ नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फी ऑफ 200 पर क्वेश्चन चैलेंज। अगर एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन के लिए आपको 400 नॉन रिफंडेबल पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये है कि आप जो भी आंसर दे रहे हैं वो अगर कहीं लगता है कि हाँ, लेकिन ये ज्यादातर मैक्सिमम केस में जो आंसर या आंसर की देते वही सही रहते। अगर कहीं पर आपको लगता है कि आपका आंसर सही है, एनटीए का आंसर सही नहीं, तो आप इसका भी चैलेंज कर सकते हैं। अभी तो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ये सारे वेबसाइट्स में आपको रिजल्ट डिक्लेयर मिल जाएंगे। और परसेंटाइल का कैलकुलेशन, मैं परसेंटाइल का कैलकुलेशन आज नहीं कर रहा, नेक्स्ट कोई सेशन में मैं परसेंटाइल का कैलकुलेशन करूंगा। आज के लिए इतना ही। मैं तो यही बोलूंगा कि आप डिटरमाइंड रहे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप जो भी करना चाहते शुड बी वेरी मच डिटरमाइंड ऑन दैट ड्रीम, कि मुझे यहां पर पहुंचना है, मुझे यह करना है, मुझे नीट क्रैक करना है, पॉजिटिव एटीट्यूड से जाना है, हाँ मुझे करना ही है। हैप्पीली आप पढ़ना जो है ना, जब भी नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे विथ स्ट्रेस कि आप मुझे करना है, हाँ डर के, ऐसा नहीं है। आप हैप्पीली, बहुत खुशी खुशी इसके लिए प्रिपेयर करना है। अब मैं बोल रहा हूं ना, 100% नीट क्रैक हो जाएगी। सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए, राइट स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स होना चाहिए, राइट स्टडी मटेरियल्स होना चाहिए, डेफिनेटली आपको नीट मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय।